हम स्वागत सम्मान से इस सभा का शुभारंभ करने वाले हैं। हम निवेदन करते हैं असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वे हमारे प्रिय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मान करें। हम उन्हें एक परंपरागत गामोसा एखनी गामोसा तारे लगते बान काही और बान बाटी, उसी के साथ बान काही और बान बाटी कांच धातु से बना हुआ ये एक थाली और कटोरी है हस्तशिल्प का, जिसमें देवताओं को भोजन परोसा जाता है। उसी के साथ रोंगघर का एक मोमेंटो आहूम राजा स्वर्गदेव प्रमोद सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया एक रोंगघर रंगभूमि है, जिसका उपभोग दर्शक के रूप में राजाओं एवं अभिजात व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। हम उन्हें भेंट करते हैं। आपका फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब हम स्वागत भाषण प्रस्तुत करने हेतु असम के वित्त, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी से निवेदन करते हैं। मोर लगत सकलो एकेलगे कब भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री आमार सकलोरे प्रेरणार प्रतीक माननीय नरेंद्र मोदी डांगरिया, आमार माजत उपस्थित अहोमर सम्मानीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, आमार मंत्रीसभार सतीर्थসকল, विधायकসকল, भारतीय जनता पार्टीर ज्येष्ठ कार्यकर्ताসকল आरु आजिर এই ऐतिहासिक जेरेंगा पथारत समवेत मोर अतिके श्रद्धार आई मातृ, युवक युवती आरु बंधु बान्धवीসকল, पोन प्रथमे अসমबासी राइजर হৈ मैं भारतर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक এই ऐतिहासिक जेरेंगा पथारলৈ उष्ण आदरणी जनाइছো। 600 বছৰৰ ৰাজত্বৰে অসমৰ বুকুত সোণালী ইতিহাস ৰচা আহোম স্বৰ্গদেউসকলে শিৱসাগৰত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। এই শিৱসাগৰৰ পৰাই অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ ভাষা সাহিত্যই এক নতুন গৌৰৱৰ দিগন্তলৈ আগুৱাই গৈছিল। এই জেৰেঙা পথাৰতেই সতী জয়মতীয়ে নিজৰ আত্মত্যাগেৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বুকুত আত্মত্যাগ আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ এক মহান ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল। এনে এক ঐতিহাসিক স্থানলৈ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आदरणी जनाबोलै पुआतो आमार बाबे सौभाग्यर कथा। আজি कोविड-19 महामारीर पिছত प्रथमबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে। আজিৰ এই মুহূৰ্তত प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आमी उष्ण अभिनंदन जनाब खुजिছো जे अमेरिका, इंग्लैंडर दरे डांगर डांगर राष्ट्रसमूहर लगत एकेलगे ठिय হৈ प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार नेतृत्वत আজি आमी कोविडर भैक्सिन आविष्कार करिब पारिছো आरो राइजक कोविड भैक्सिन आमी দিব पारिছো। मैं অসমবাসী राइजर হৈ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आत्मनिर्भरशील भारतर जी सोनाली इतिहास तेखेते रचना करिले तार बाबे तेखेतक मैं धन्यवाद जनाइছো। आजिर এই मुहूर्तत मैं आपनालोকক जनाब खोजो
যে যোৱা কোভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত প্ৰতিটো পলে পলে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীৰ খবৰ লৈছিলে। অসমবাসী ৰাইজৰ 2,23,00,000 লোকক এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ তেখেতে বিনামূলীয়াকৈ আমাক চাউলৰ যোগান ধৰিছিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে জনধন একাউণ্টত মহিলাসকলৰ বাবে সেই সময়ত জনধন একাউণ্টত নগদ টকা জমা দিছিলে। 12 লাখ আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ বেংক একাউণ্টত মোদী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ তেখেতে নতুনকৈ পুঁজি পঠিয়াই লকডাউনৰ সময়ত যাতে অসমবাসী লোকে কোনো কষ্ট নাপায় তাৰ বাবে তেখেতে আমাক সাহস দিছিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী PM কেয়াৰৰ পৰা 960টা ভেন্টিলেটৰ আমাক সেই সময়ত যোগান ধৰিছিলে। 1300টা অক্সিজেন কনচেন্ট্ৰেটৰ আমাক দিছিলে আৰু অসমত কোভিড চিকিৎসাৰ বাবে ICU স্থাপনৰ বাবে 180 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমবাসী ৰাইজক আগুৱাইছিলে। মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি সাহস নহলহেঁতেন, মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি প্ৰেৰণা নহলহেঁতেন, অসমত আমি কোভিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আজি তেখেতে কোভিডৰ পিছত প্ৰথমবাৰ এই অসম মাতৃৰ ভূমিলৈ আহিছে। মই আপোনালোকক আহ্বান জনাম, সকলোৱে নিজৰ স্থানত থিয় হৈ হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে নিজৰ কৃতজ্ঞতা জনাব, অসমবাসী ৰাইজৰ কৃতজ্ঞতা জনাব। এয়া আমাৰ বুকুৰ কৃতজ্ঞতা, এয়া প্ৰতিজন অসমবাসী ৰাইজৰ কৃতজ্ঞতা। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি কোভিড-19 সময়ত আমাক যি ধৰণে সহায় কৰিলে আমি কেতিয়াও আপোনাক পাহৰিব নোৱাৰিম। এই ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত আপুনি আহিছে। এই জেৰেঙা পথাৰতেই সতী জয়মতীয়ে এদিন স্বদেশ প্ৰেমেৰে নিজৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিছিলে। আজি এই মুহূৰ্তত অসমৰ জনগণে আকৌ এক নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি আমাৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ চলিছে আমাৰ জাতিসত্তাৰ ওপৰত। এই জেৰেঙা পথাৰত থিয় হৈ আমি এবাৰ সংকল্প লৈছো, এই অসমৰ মাটিত আমি ভাৰতৰ গৌৰৱ আৰু অসমীয়াৰ বিজয় ধ্বজা সদায় উৰুৱাই ৰাখিম আৰু আমি আমাৰ শত্ৰুসকলক পৰাস্ত কৰিম। পুনৰ এবাৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এই পবিত্ৰ ভূমিলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজক আমি ক'ব খুজিছো যে এই জেৰেঙা পথাৰত আমি সতী জয়মতীৰ 100 বিঘা মাটিৰে এটা সম্পূৰ্ণ স্মাৰক নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই পবিত্ৰ সভাতে আজি আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখতে অসমবাসী ৰাইজক দিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। माननीय मंत्री महोदय आमी धन्यवाद ज्ञापन करिलु। अब हम असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने मूल्यवान विचार व्यक्त करें। অসমৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়াললৈ মাটিৰ পট্টা বিতৰণৰ উদ্দেশ্যে
আজি আয়োজিত এই জেৰেঙা পথাৰৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা ভাৰতবৰ্ষৰ আদৰ্শবাদী নেতা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শুভাকাংক্ষী ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আজি এই সভাত মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ সভাপতি হাউচপেডৰ অধ্যক্ষ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, মাননীয় সাংসদসকল, মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল আৰু সমবেত পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে। আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমূহ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ বাবে অতিকৈ আনন্দৰ দিন, কাৰণ আমি 2016 চনত যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত চৰকাৰত অধিষ্ঠিত হৈছিলোঁ, আমাৰ লক্ষ্য আছিল যে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শৰে সকলোকে আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ সকলোকে উন্নয়নৰ বাবে সমদৃষ্টি ৰাখি আৰু সকলোকে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আগুৱাই নিয়া আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়া, অসমত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম গঢ়ি তোলা আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক বাতাবৰণ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে, সেউজীয়া বাতাবৰণ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়ি তোলা আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্ত চিল কৰি অনুপ্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়ি তোলা আৰু এখন সকলোকে আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰা, সেই লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ সাহন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰা কালত যোৱা 4.5 বছৰত আমি দেখিলোঁ অসমৰ ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলী লোকে এইখন চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ ফলত আমি যোৱা 4.5 বছৰত সফলতাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি অসমৰ জনগণৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হলো। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক অসমীয়া শিপিনীয়ে সপোন ৰচা গামোচাখনক বিশ্ব মঞ্চত তেখেতে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে আৰু অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক তেখেতে মৰণোত্তৰভাৱে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান যাচি অসমীয়া জাতিৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিক সন্মান প্ৰদান কৰিলে। माननीय मोदी जी, मैं आपको असम की जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने भूपेंद्र को भारत रत्न देकर सारे असम की जनताओं को आपने जैसे इज्जत दिया, जैसे भूपेंद्र को आपने इज्जत दिया, मुझे लगता है इसके जरिए आपने ये स्पष्ट कर दिया
आप असम और असमिया की सबसे बड़े शुभचिंतक हैं और रहेंगे। और आज असम के जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो विकास हो रहा है, इसके पीछे आपका आशीर्वाद और सहयोग है। आपने असम और उत्तर पूर्व को हौसला और हिम्मत दिया, साहस दिया, सहयोग दिया, जिसके वजह से आज हमने अपना पहचान देश के अंदर बनाने में सफल हुए। आप ऐसे ही हमेशा हमारा शुभचिंतक बने रहे, मार्गदर्शक बने रहे, यही हमारा अपेक्षा है आपसे। मैं आज এই সভাত সমবেত হোৱা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজলৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো। কাৰণ আপোনালোকে যোৱা 4.5 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰতিটো পদক্ষেপক আপোনালোকে সঁহাৰি জনালে আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলেও গঠনমূলক সমালোচনাৰ যোগেদি এইখন চৰকাৰক ৰাইজৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্বশীল হৈ দায়িত্ব সহকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ বাবে আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা জনালে। সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজ সকলো যাতে মান সন্মান স্বাভিমান লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ অতদিনে মনত ভয় আছিল যে আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হবনে নাই, এই প্ৰশ্নই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক খুলি খুলি খাইছিল, সদায় অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাখিছিল। গতিকে সেই অনিশ্চয়তাক দূৰ কৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিয়া হ'ব। আৰু বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়া জাতিৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য গৌৰৱ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে যি বলিষ্ঠতাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনজাতিয়ে হওক, অনুসূচিত জাতিয়ে হওক, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায় হওক, বিভিন্ন ভাষা ভাষীয়ে হওক, সকলো আজি অসমৰ বুকুত সুৰক্ষিত। মই অত্যন্ত আনন্দিত যে আজি এই মুহূৰ্তত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে মিলাপ্ৰীতিৰে অসমৰ বুকুত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। আৰু এইখন অসম আৰু এতিয়া আৰু পেছলৈ নাচায়। স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে এখন বৰ অসম শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে আমি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সকলো সুৰক্ষিত আৰু আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক আমি উন্নয়নৰ দিশত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ মূল সংকল্প। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই বিশ্বাস ৰাখিছো এই পবিত্ৰ জেৰেঙা পথাৰ সতী জয়মতীলৈ মই কোটি কোটি প্ৰণাম। সেইগৰাকী মহান সতীয়ে আমাক আদৰ্শ দেখুৱালে আৰু মহিলা জাতিৰ সবলীকৰণৰ সন্দৰ্ভত এটা শক্তিশালী ইতিহাসৰ পাতত চেতনা প্ৰদান কৰিলে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো সেই শক্তিলৈ একবিংশ শতিকাত আগন্তুক দিনত আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্বজয় কৰাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব আৰু আমি পাৰিম, নোৱাৰাৰ কোনো কথাই নাই। আজিৰ তাৰিখত অসমৰ কৃষি খণ্ডত উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে যেনেধৰণে আত্মনিয়োগ কৰিছে আৰু মৎস্য উৎপাদন হওক, অন্যান্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে আমাৰ পুৰুষ মহিলাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ কাৰ্যকালত কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছে, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছে, নানা ফল মূল শাক পাচলি ঔষধি সামগ্ৰী আজি অসমৰ সন্তানে বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেধৰণে অসমৰ বুকুলৈ সুখ্যাতি আজি কঢ়িয়াই আনিবলৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছো আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিব লাগিব, বিশ্বগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ অটুট ৰাখি আমাৰ এইখন অসমত আমি স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৰ্ম সংস্কৃতি বৃদ্ধি কৰি আমি আমাৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালী পথ গঢ় দিব লাগিব আৰু আমি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। মই ভাবো এই লক্ষ্যৰে উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংকল্প লৈ
তেখেতসকলক কৰ্মপথাৰত দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হওক তাকেই কামনা কৰি সদৌ শেষত আজিৰ এই সভাত শিৱসাগৰ ৰাইজে লগতে চুবুৰীয়া বিভিন্ন জিলাৰ ৰাইজে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ অসম আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ আমি যিখিনি ত্যাগ তেখেতসকলৰ যিখিনি কষ্ট ইয়াক আমি জীয়াই থকা সকলে মূল্যাংকন কৰিব লাগিব আৰু অসমীয়া জাতিক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাৰে পালন কৰি যাম আৰু এই কাম যোৱা 4.5 বছৰ যেনেধৰণে কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে বিজেপি চৰকাৰেহে অসমৰ পৰা বিদেশী খেদিব পাৰে বিজেপি চৰকাৰেহে অসমীয়া জাতিক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব পাৰে আৰু বিজেপি থকালৈকে অসমীয়া জাতিক কোনো কাৰণত শংকিত আৰু চিন্তিত হ'ব নালাগে সকলো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব মৰ্যাদা সহকাৰে থাকিব অসমত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া মাৰোৱাৰী বিহাৰী বঙালী পাঞ্জাবী নেপালী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন শিখ আৰু বিভিন্ন জনজাতি সম্প্ৰদায় অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায় অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে এইখন বৰ অসম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই ভবাৰ দৰে আমি শক্তিশালী ৰূপত একবিংশ শতিকাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই পুনৰবাৰ আজি এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ বীৰ সন্তান নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেখেতৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেতৰ যিখিনি ত্যাগ যিখিনি কষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই কথা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো জনগণে পাহৰিব নোৱাৰে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসলৈ মই কোটি কোটি প্ৰণিপাত জনাইছো আৰু তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো যাতে আমাৰ উঠি অহা যুৱ শক্তি আগন্তুক দিনত এনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম পালন কৰি যায় ইয়াৰ বাবে যেন শক্তি ভক্তি বল প্ৰদান কৰে এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কোটি কোটি মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তেখেতৰ সহযোগিতা তেখেতৰ আন্তৰিকতা তেখেতৰ মৰম স্নেহ আজি অসমৰ ৰাইজে কামে কাজে আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে मैं फिर से हमारे परम आदरणीय आदर्शवादी नेता निष्ठावान मेहनती और जिन्होंने हमारे देश को विश्व भर में एक अलग सा पहचान दिया और आज दुनिया के अगर सबसे लोकप्रिय कोई नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है नरेंद्र मोदी जी है नरेंद्र मोदी जी है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद সকলে থিয় হৈ কওক নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আৰু এতিয়া আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক উদ্দেশ্যে ভাষণ দিব সকলোৱে মনোযোগিতাৰে তেখেতৰ বক্তব্য শুনিব মই পুনৰবাৰ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था जिनका इस जमीन पर पहले हक है जो इस भूभाग पर सदियों से रह रहे हैं जिन्होंने इस धरती से सोना उपजाया है इसे समृद्ध किया है उन्हें आज उनका अधिकार मिल रहा है भूमि का अधिकार जनता का सशक्तिकरण अब हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने कर कमलों द्वारा आनुष्ठानिक रूप से 10 लाभार्थियों को भूमि पट्टा प्रदान करें মঞ্চলে আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়াক তিনচুকীয়া এয়া শ্ৰী ব্ৰজেন মৰাণ ডাঙৰীয়া তিনচুকীয়াৰ তেখেতৰ পাছতেই শ্ৰী ৰত্নকান্তি সোণোৱাল টিংখং
তেখেতৰ পাছতে শ্ৰী পুৱাল দেউৰী গোগামুখ তেখেতৰ পাছতে শ্ৰী নীলমণি পায়েং এয়া শ্ৰী নীলমণি পায়েং শ্ৰী দেৱকুমাৰ সোণাৰীৰ শ্ৰী দেৱকুমাৰ আঙৰীয়াৰ পাছতেই শ্ৰীমতী ঋতুমণি গগৈ মাহমৰা শ্ৰীমতী ঋতুমণি গগৈ তেখেতৰ পাছতেই মহম্মদ ইনামুল হাজৰিকা নাজিৰা তেখেতৰ পাছতেই শ্ৰীমতী চম্পা চৰকাৰ শিৱসাগৰ শ্ৰীমতী চম্পা চৰকাৰৰ পাছতেই শ্ৰী বলিন শইকীয়া যোৰহাট হৰেশ্বৰ চুতীয়া আটাইকেইগৰাকীকে আমি শুভেচ্ছা জনালো আৰু পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো दर्शकगण देश बदल रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है और सशक्त और समर्थ बन रहा है नए हौसले नए सपने और नए संकल्प का हमारे यहाँ एक नया भारत निर्माण हो रहा है और उसका निर्माण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनके श्रम यत्न और साधना से यह संभव हो रहा है हम निवेदन करते हैं हमारे राष्ट्र नायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस सभा को संबोधित करें तालियों की जोरदार गूंज के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री रामेश्वर तेली जी असम सरकार में मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी भाई अतुल बोरा जी श्री केशव महंत जी श्री संजय किशन जी श्री जगन मोहन जी हाउसफेड के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार दास जी अन्य सभी सांसदगण विधायकगण और असम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये जरा माइक ठीक करिए भाई बीच बीच में आवाज आ रही है মই অসম বাসীক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছে আহি বালগীয়া দিনবোৰ সকলোৰে বাবে হক আৰু हमरे धीरे पूर्ण हक साथियों
असम के लोगों का ये आशीर्वाद, आपकी ये आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। बीते वर्षों में अनेकों बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का, असम के भाई बहनों से बातचीत करने और विकास के कामों से जुड़ने का अवसर मिला है। पिछले वर्ष मैं कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद जो उत्सव हुआ उसमें शामिल हुआ था। अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई। भाई और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। ये भूमि असम के भविष्य के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाली महासती जयमती की बलिदान भूमि है। मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। भाई और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर
पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। साथियों, हम सभी एक ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक है जहां हमारी धरती, हमारी जमीन सिर्फ घास, मिट्टी, पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। धरती हमारे लिए माता का रूप है। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मोर धरित्री आई, ओ मोर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई, खोतियो कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। यानी है धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा? मिट्टी के बिना वो असहाय होगा। साथियों, ये दुखद है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी असम में लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। उनकी आजीविका पर लगातार संकट बना रहा। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहां करीब करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लैंड पॉलिसी बनाई गई है वो यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते सालों में 2.25 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे जा चुके हैं। अब इसमें 1 लाख से ज्यादा परिवार और जुड़ जाएंगे। लक्ष्य ये है कि असम के ऐसे हर परिवार को जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों और बहनों, जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है, इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर
बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में शामिल हो जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हजारों रुपयों की मदद सीधी बैंक खाते में भेजी जा रही है। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वो अपने व्यापार कारोबार के लिए इस जमीन पर बैंकों से ऋण आसानी से ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, असम की लगभग 70 छोटी बड़ी जनजातियों को सामाजिक संरक्षण देते हुए उनका तेज विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। अटल जी की सरकार हो या फिर बीते कुछ सालों से केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार, असम की संस्कृति, स्वाभिमान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। असमिया भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी तरह हर समुदाय के महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का काम बीते सालों में असम की धरती पर हुआ है। श्रीमंत शंकर देव जी का दर्शन, उनकी शिक्षा असम के साथ साथ संपूर्ण देश, पूरी मानवता के लिए बहुत अनमोल संपत्ति है। ऐसी धरोहर को बचाने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश हो, ये हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन बाटाद्रवा सत्र सहित दूसरे सत्रों के साथ क्या बर्ताव किया गया, ये असम के लोगों से छिपा नहीं है। बीते 4.5 सालों में असम सरकार ने आस्था और अध्यात्म के इन स्थानों को भव्य बनाने के लिए, कला से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं को संजोने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी तरह असम और भारत के गौरव काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अतिक्रमण से मुक्त करने और पार्क को और बेहतर बनाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है, और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। असम में लगभग 1.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों
और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। आज असम की लगभग 40% आबादी आयुष्मान भारत की लाभार्थी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख साथियों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। बीते 6 साल में असम में टॉयलेट्स की कवरेज 38% से बढ़कर 100% हो चुकी है। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये जितनी भी सुविधाएं हैं, इनका लाभ सबसे ज्यादा हमारी बहनों बेटियों को ही होता है। असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाभ उज्ज्वला योजना से भी हुआ है। आज असम की करीब 35 लाख गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इसमें भी लगभग 4 लाख परिवार एससी और एसटी वर्ग के हैं। 2014 में जब हमारी सरकार केंद्र में बनी, तब असम में एलपीजी कवरेज सिर्फ 40% ही थी। अब उज्ज्वला की वजह से असम में एलपीजी कवरेज बढ़कर करीब 99% हो गया है, 99% हो गया है। असम के दूर दराज वाले इलाकों में गैस पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या को भी काफी बढ़ाया है। 2014 में असम में 330 एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब आज इनकी संख्या 575 से भी ज्यादा हो गई है। हमने देखा है कि कैसे उज्ज्वला ने कोरोना के समय में भी लोगों की मदद की है। इस दौरान असम में 50 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस सिलेंडर उज्ज्वला के लाभार्थियों को दिए गए हैं। यानी उज्ज्वला योजना से असम की बहनों का जीवन भी आसान हुआ है और इसके लिए जो सैकड़ों नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हैं, उससे अनेक युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर चल रही हमारी सरकार असम के हर हिस्से में हर वर्ग को तेजी से विकास का लाभ पहुंचाने में जुटी है। पहले की नीतियों के कारण चाय जनजाति की क्या स्थिति हो गई थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अब चाय जनजाति को घर और शौचालय जैसी मूल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। चाय जनजाति के अनेक परिवारों को भी जमीन का कानूनी अधिकार मिला है। चाय जनजाति के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार
उनको बैंक की सुविधाओं से जोड़ा गया है। अब इन परिवारों को भी सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में मिल पा रहा है। श्रमिक नेता संतोष टोपनो सहित चाय जनजाति के दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने चाय राजनीति के योगदान को सम्मान दिया है। चाय जनजाति के सम्मान दिया है। साथियों, असम के हर क्षेत्र की, हर जनजाति को साथ लेकर चलने की इसी नीति से आज असम शांति और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया है। समझौते के बाद हाल में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुने गए। मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। भाइयों और बहनों, आज हमारी सरकार असम की जरूरतों की पहचान करके हर जरूरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। बीते 6 सालों से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार भी हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। आज असम और नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही असम आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा है। बीते सालों में असम के गांवों में करीब 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सराय घाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार्ग से और जीवन को खतरे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। इसके अलावा जल मार्गों से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। साथियों, असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जब देश गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो असम भी इस अभियान का एक अहम साझीदार है। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है और असम में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं।
नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तारीकरण करने के साथ साथ वहां अब बायो रिफाइनरी की सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे तेल और गैस के साथ साथ असम इथेनॉल जैसा बायोफ्यूल बनाने वाला देश का मुख्य राज्य बनने वाला है। भाइयों और बहनों, असम जब स्वास्थ्य और शिक्षा के हब के रूप में भी विकसित हो रहा है, एम्स और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान बनने से असम के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिलने वाले हैं। जिस तरह से असम ने कोरोना महामारी को हैंडल किया है, वो भी प्रशंसनीय है। मैं असम की जनता के साथ ही सोनोवाल जी, हेमंता जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि असम अब टीकाकरण के अभियान को भी सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा असम वासियों से भी आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाएं और ये भी याद रखें कि टीके की एक डोज नहीं, दो डोज लगनी जरूरी है। साथियों, पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है। भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं। हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है। अंत में फिर एक बार उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनको भूमि का अधिकार मिला है। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब प्रगति करें, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वादे नहीं इरादे लेके आए राष्ट्र नायक हर दिल अजीज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मंच पर आसीन सभी गण्यमान्य अतिथियों का